Good morning to all of you. From today, we are going to start. We are going to discuss on another important issue of ancient Indian history, and that issue, the topic is life and achievements of Kanishka First. As you know, that Kanishka First was a famous ruler of Kusan dynasty. He was not only the famous ruler of Kusan dynasty, but also he was one of the famous kings of one of the famous rulers of Indian history also. As you know that Kusan dynasty was especially related to Yuchi tribes of China. They were living in the frontier region of China. From there, they migrated gradually, time to time, and at last they came to India and established here a vast empire in which not only Indian territories but also some parts of world countries, some parts of other foreign countries were also included, so that this empire is known as the first international empire of Indian history. ओके तो कुषाण वंश जो है यह भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य माना जाता है, इन विच सम पार्ट्स ऑफ इंडिया बट नॉट ओनली सम पार्ट्स बट मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान and some regions of Aral Sea were also included in this empire, so that it was a very vast and huge empire of Indian history that was dominated by Kusan dynasty. Okay. Karl Marx, a famous historian who has given a theory of class struggle, who has given a theory of dialectic materialism, under the influence of Westoxification and the theory of race, पश्चिमी उन्माद और पश्चिमी दृष्टिकोण की प्रभाविता के फलस्वरूप कार्ल मार्क्स हैज टेकन Kusan dynasty as the golden era of Indian history, while others like K.M. Munshi and other historians have taken Gupta dynasty as the golden era of Indian history. Kusan dynasty emerged as a political power in the second century BC, and they dominated the most of the regions of the world. And if you go through the basic, through the initial or early history of Kusans, we find that they were related to Yuchi tribes of China that were living especially in the frontiers region of China, from where in 165 BC हुंगनू किंग मतलब हुनों के शासक लाओसंग defeated them and drew them out of that region. From migrated there they came to the area of Ili River, where they defeated the Wunsun tribe of Central Asia, and started to leave that region. And from this Ili River, the Yuchi tribe was divided into two parts, two branches. First is Small Yuchi, and second is Greater Yuchi. जो पहला था आपका छोटी शाखा कहलाई, जो मुख्यतः ये लोग तिब्बत की तरफ गए, और इन लोगों ने अपर तिब्बत, जो ऊपरी तिब्बत का रीजन है, उसमें उन लोगों ने क्या किया, अपना निवास बना लिया, वहाँ पे रहने लगे. While Endar Yuchi tribe, that is known as the Greater Yuchi, मुख्य शाखा या तायुची, या इसे बोलते हैं तायुची. ये लोग क्या किए, ये लोग आगे बढ़े, और आगे बढ़कर ये लोग सिरदरिया तक पहुंच गए. लेकिन सिरदरिया में पहुंच के लोगों ने सबको को पराजित किया, वहाँ पे निवास बना लिया, लेकिन ज़्यादा दिन वहाँ पे नहीं रह पाए, क्योंकि वुनसुन जिसको यूचियों ने पराजित किया था, वे लोग चले गए
हुनों के पास हुंगनू के पास, और दोनों लोगों ने मिलकर फिर से इनके ऊपर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करके उनको फिर से वहाँ से माइग्रेट कर दिया, फिर से एग्जाइल कर दिया। तो अब क्या किया गया कि ये लोग वहाँ से आगे पहुँच के वहाँ से आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर ये लोग पहुँच जाते हैं माइग्रेट होकर धीरे धीरे बैक्टीरिया के क्षेत्रों में, सिरदरिया और बैक्टीरिया के क्षेत्रों में। अब वहाँ से क्या करते हैं, वहाँ से ये लोग बैक्टीरिया पहुँचने पे अगेन दे वर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। अब क्या किया, फिर से वो लोग वहाँ पे 5 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाते हैं, और जिसमें से एक ब्रांच जो है जो आपका भारत में कुषाण डायनेस्टी के रूप में जानी जाती है। अब जो पांच इनके ब्रांचेज हैं, अगर उनको देखा जाए तो पहला है ह्यूमी, 5 ब्रांचेज ऑफ कुषाण डायनेस्टी, आप इसको देख सकते हैं। पहला है हीउमी, दूसरा है आपका सुआंगमी, तीसरी जो इसकी शाखा है वह है आपका, जिसे कुषाण करते हैं कोई चाउआंग, कहीं कहीं कोई चाउसांग भी कहते हैं, कोई चाउआंग, जिसे आप कुषाण करते हैं भारत में, कुषाण। एंड फोर्थ आपका जो है वे हैं हितून, और 5वें हैं काओफू, हितून एंड काओफू। ये जो हैं ये 5 इनके ब्रांचेज हैं, ह्यूमी, सुआंगमी, कोई चाउआंग मतलब कुषाण, that were became as a prominent political power in India, हितून एंड काओफू। स्पेशली अगर देखा जाए तो जो यूची कबीला है यह मुख्यतः चाइना के जो सीमावर्ती एरिया में जहाँ रहते थे, वो पर्टिकुलर प्लेस था आपका कांसू और निंगसिया, कांसू एंड निंगसिया। इन्हीं स्थानों पे कुषाणों ने सबसे पहले, कुषाण मतलब यूची कबीला सबसे पहला अपना निवास स्थान बनाया हुआ था। ओके, इफ यू गो थ्रू द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, वी फाइंड देयर आर सो मेनी सोर्सेज, सो मेनी इंस्क्रिप्शनल सोर्सेज, सो मेनी लिटरेरी सोर्सेज दैट रिवील द हिस्ट्री ऑफ कुषाण डायनेस्टी। In literary sources, माध्यमिक सूत्र of Nagarjun, who was a courtier of Kanishka first, who has given the theory of relativism, the theory of middle way, मध्यम कारिका, and he is known as the Martin Luther of India, also. Second is Asubhos, who wrote Buddha Charit. In these books we find the history of Kushan dynasty, and others very important source like Cien Hansu, that was written by Panku, that these books are related to Chinese history, especially in these books we find the early history of Kushanas. So Cien Hansu written by Panku, Hao Hansu written by Fan A, that reveal the early history of Yuchi tribe, early history of Kushanas, and Wensang, who wrote Siyuki. The meaning of Siyuki is a record of the western region, पाश्चात्य संसार के लेख। सियुकी का तात्पर्य होता है पाश्चात्य संसार के लेख। that was written by Wensang, and that was translated in English by Samuel Beal,
सैमुअल बिल ने इसको अंग्रेजी में आगे चल के अनुवाद किया जिसका नाम रखा गया रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। सैमुअल बिल ने आगे चल के इसको अंग्रेजी में अनुवादित किया, SAMUEL सैमुअल बिल translated the Siuki of Wensang with the name of Buddhist record of the Western world. Buddhist record of the Western world. This is the translation of the Siuki. और थोड़ा बहुत जानकारी हमको फाहियान के फोकोकी से मिलता है। फाहियान who wrote a famous book named फोकोकी। फोकोकी मीन्स होता है द ट्रेवल्स ऑफ फाहियान। फोकोकी सियुकी फाहियान की बुक का नाम है आपका फोकोकी KWO कर दीजिए, चाइनीज नहीं में थोड़े से प्रॉब्लम होते हैं। फोकोकी इसका मतलब होता है द ट्रेवल्स ऑफ फाहियान। द ट्रेवल्स ऑफ फाहियान। दिस बुक वाज लेटर ऑन ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय जेम्स लेगे। इस ग्रंथ को आगे चलकर अंग्रेजी में अनुवाद किया गया जेम्स लेगे के द्वारा। जेम्स लेगे ने इसे अनुवाद किया विद द नेम ऑफ अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स। इसका अनुवाद किस नाम से किया गया? इसका अनुवाद किया गया अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स, KINGDOMS, a record of Buddhist kingdoms. Okay, and in the source that reveal the history of Kusan dynasty are related to inscriptions. There are many inscriptions we find like Rabatak inscription of Afghanistan. That is a very very important inscription that came into the light in 1993, especially by the help of Nicholas Simus Williams and Crew. Nicholas Simus Williams and Crew, who are the famous historian related to the inscription of Rabatak. In Rabatak inscription, we find the genealogy of Kusan dynasty, and according to the Rabatak inscription, there were 4 consecutive rulers of Kusan dynasty. First was Qu Sikyong. This is the Chinese name of Kuzul Kadphises. Q टी आपका साइलेंट है। QCOQ ये क्या है? दैट इज द चाइनीज नेम ऑफ कुजुल कटफिशेस। सेकेंड इज बिम तख्तू। ही इज आल्सो नोन, सम हिस्टोरियंस से दैट दिस रेफर्स टू सद्दा सकना। तो सद्दा सकना या बिम तख्तू दूसरे इसके प्रमुख आपके शासक हैं। एंड थर्ड वन इज एन काओ चेन मीन्स बिम कटफिशेस। एन काओ चेन इज रिलेटेड टू बिम कटफिशेस। एंड फोर्थ वन इज कनिष्क फर्स्ट। कनिष्क इज रेफर्ड इन चाइनीज टेक्स्ट एज किया किचा। तो कनिष्क को चाइनीज ग्रंथों में किया किचा कहा गया है। ओके, किया किचा। तो 4 लोगों का जो 4 पूर्वजों के हमको नाम कुसान डायनेस्टी में मिलते हैं, खासकर रबातक इंस्क्रिप्शन में जो 1993 में प्रकाश में आया। यह आपका बैक्ट्रियाई भाषा और ग्रीक लिपि में स्क्रिप्ट में लिखा गया है। द लैंग्वेज ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन इज द बैक्ट्रियन, वाइल द स्क्रिप्ट इज
ग्रीक, इसमें हमको 4 लोगों के नाम मिलते हैं, जबकि बिम तख्त या सद्दा सकना का नाम किसी अन्य सोर्स में नहीं मिलता है, केवल और केवल रबातक इंस्क्रिप्शन मिलता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन। ओके, एंड सेकेंड सोर्स इज जिद्दा इंस्क्रिप्शन। जिद्दा इंस्क्रिप्शन आप पेशावर पाकिस्तान, मणिक्याल इंस्क्रिप्शन आपको पंजाब, सुई बिहार इंस्क्रिप्शन सिंध रीजन आप पंजाब, एंड मथुरा इंस्क्रिप्शन, सारनाथ इंस्क्रिप्शन, रेह इंस्क्रिप्शन आप फैजाबाद, सहेत महत इंस्क्रिप्शन आप श्रावस्ती, एंड सुर्खकोतल से भी हमारे पास बहुत सारे साक्ष्य मिले। सुर्खकोतल इज सिचुएटेड इन अफगानिस्तान। यहाँ से हमको अ ग्रुप ऑफ डेटीज ऑफ कुषाण, यहाँ गुप्तों के देवताओं का एक देवमंडल का साक्ष्य मिलता है, जिससे हमको इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो अफगानिस्तान का सुर्खकोतल भी दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द सोर्स ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कुषाणाज पास्ट। तो कुषाणों के अतीत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण भी एक स्रोत है सुई बिहार इंस्क्रिप्शन, दैट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, आई टोल्ड यू अर्लियर। ठीक है, तो ये सब जो प्रमुख ग्रंथ हैं आपके, इनसे हमको कुषाणों के प्रारंभिक इतिहास के बारे में और भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अगेन if you go through the history of Kanishk first, as you know that Kanishk first was the fourth ruler of Kushan dynasty according to the Rabatak inscription, while in Indian perspective it is taken that he was the third emperor of Kushan dynasty. कनिष्क को चीनी स्रोतों में कियाकिचा कहा गया है। ही इज नोन एज द कियाकिचा इन चाइनीज सोर्सेस। और कनिष्क ने कई उपाधियां धारण किया, जैसे कनिष्क को देवपुत्र कहा गया है, कनिष्क को महाराजा धीराज कहा गया है। ही इज आल्सो नोन एज द किंग ऑफ किंग्स, इसे राजाओं का राजा कहा गया है। कहाँ पे? रबातक इंस्क्रिप्शन ने इसे राजाओं का राजा कहा गया है, जिसे कहते हैं बैसिलस ऑफ बैसिलियस। इसी को कहते हैं चाइनीज में साओ नानो साओ, मतलब होता है शहंशाह, राजाओं का राजा। ठीक है, इसे कहते हैं साओ नानो साओ। तो साओ नानो साओ बैसिलियस ऑफ बैसिलियस, किंग ऑफ किंग्स, ऑल आर द इंटाइटल्स आपको कनिष्क फर्स्ट। ओके, कनिष्क फॉर द पैट्रोनेज ऑफ बुद्धिज्म and propagation of Buddhism, for his contribution in the history of Buddhism. He is also referred as the second Ashok of Indian history. इसे बौद्ध धर्म के संरक्षण और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के कारण द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, who ruled from 78 AD to 101 AD. Although it is a very debated point that from which particular date he started his reign. There are so many views, so many historians have taken their own views and they told that he was coronated in such and such years, but many historians believe that he was coronated in 78 AD, so that his history should be taken from 78 AD. That was the date of the initiation of शक कैलेंडर, शक संवत also. इसने शक संवत की भी शुरुआत किया। कनिष्क की जो तिथि है आपका 78 ईस्वी, इसे मुख्यतः आर.डी. बनर्जी, रैप्सन, राय चौधरी, फर्गूसन, ओल्डेनबर्ग, थॉमस एल बासम आदि ने इसे 78 AD ही स्वीकार किया है। साथ ही साथ कनिष्क के डेटिंग सिस्टम को लेकर, क्रोनोलॉजी को लेकर 2 अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हुए। एक आपका 1913 में हुआ और दूसरा आपका 1960 में लंदन में हुआ। इस दोनों सेमिनार्स में भी यही डिसाइड किया गया कि कनिष्क जो था इसकी तिथि 78 AD ही माना जाना चाहिए। तो 78 AD ही बेसिकली कनिष्क की प्रारंभिक तिथि मानी जाती है। ओके, अब आते हैं
ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि कनिष्क कैसे कैसे कुषाण यूची जाति आपका कांसू और निंगसिया प्रदेश से, जो कि आपके चीन का सीमावर्ती फ्रंटियर रीजन है, वहाँ से कैसे कैसे माइग्रेट करता है, कैसे वो आके इल रिवर के क्षेत्र में आता है, इल रिवर से कैसे वो 2 भागों में विभाजित होता है, वहाँ से कैसे वह आगे बढ़कर सिलगरिया की तरफ पहुँचता है, उसके बाद फिर वह कहाँ से बैक्टीरिया की तरफ पहुँचता है, और बैक्टीरिया में ये लोग बैक्टीरिया जिसे आप ताहिया भी कहते हैं, बैक्टीरिया को ताहिया भी कहते हैं। और बैक्टीरिया में, ठीक है, ताहिया यहीं पे उन लोगों ने पहली राजधानी बनाई थी सोग्डियाना को हम लोग उस जो तत्कालीन समय में बैक्टीरिया और सोग्डियाना का जो क्षेत्र है, वहीं पे कुषाण डायनेस्टी आपका शुरू होता है, कुषाणों का इतिहास वहीं शुरू होता है। इसमें सोग्डियाना को प्राचीन काल में बुखारा नाम से जानते थे, बुखारा। तो इसी बुखारा में इन लोगों ने क्या किया, बैक्टीरिया और सोग्डियाना के क्षेत्र में इन लोगों ने अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई, वहाँ से आगे बढ़े। भारत में कुषाण वंश की 2 राजधानियाँ रही, एक रही पुरुषपुर पेशावर में और दूसरी राजधानी थी इनकी मथुरा में। ठीक है, तो मथुरा और पुरुषपुर पेशावर वाज द कैपिटल्स ऑफ कुषाण डायनेस्टी। ओके, ठीक है, आते हैं कैंपेन्स ऑफ कनिष्क फर्स्ट। It is told that after coronation he started to extend his empire. In this way, he firstly, it is told that in his region the Parthian king attacked on his empire. पार्थिया को चीनी सर्वप्रथम कहा गया नानसी। पार्थिया इज नोन एज नानसी। तो कहा जाता है कि नानसी के शासक ने कुषाण डायनेस्टी का आक्रमण कर दिया, बट ही वाज डिफीटेड बाय कनिष्क। तो कनिष्क से वह पराजित हो गया। दूसरा देखते हैं, इसके पश्चात एक अन्य सोर्स है जो आपका चाइना इन दैट टाइम इन द कंटेम्प्रेरी एरा ऑफ कनिष्क देयर वाज द किंगडम ऑफ हान डायनेस्टी। वहाँ पे हान वंश का शासन था। एंड द किंग वाज होती, और उसके राजा थे आपके होती, उसके राजा थे। एंड द कमांडर इन चीफ ऑफ दैट किंगडम वाज पांचाओ, और उसके सेनापति थे पांचाओ। तो राजवंश था हान डायनेस्टी, हान वंश, राजा थे होती, और उसके कमांडर सेनापति कौन थे, पांचाओ। ऐसा माना जाता है कि हमको चाइनीज सोर्सेज से ऐसी जानकारी मिलती है कि इस समय चाइना के जो हान वंश था, इसने यारकंद, खोतान, कुची आदि क्षेत्रों पे अधिकार कर लिया था। और कनिष्क का भी हमारे पास साक्ष्य मिलता है। कनिष्क ने कहा है कि सभी दिशाओं के लोगों ने मेरी अधीनता मानी, लेकिन उत्तर का दिशा जो है यह अधीनता मानने के लिए नहीं आया। इससे ऐसा लगता है कि कुछ लोग कहते हैं, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि संभवतः प्रारंभ में कनिष्क को यहाँ पे सफलता नहीं मिली थी और कनिष्क इनको जीत नहीं पाया था। लेकिन आगे ह्वेनसांग के वर्णन में अगर सियूकी में देखें तो ह्वेनसांग कहता है कि जो सुंगलिन पर्वत का क्षेत्र है, इसे आप कहते हैं चीनी तुर्किस्तान, जो सुंगलिन प्रदेश का क्षेत्र है, कहा जाता है कि यह कनिष्क के नियंत्रण में था। इससे तात्पर्य यह होता है कि जो आपका खोतान, कासगर, यारकंद आदि का जो क्षेत्र था, आगे चल के कनिष्क ने निश्चित रूप से जीत लिया था। तो ऐसा हिस्टोरियंस मानते हैं कि देयर वर 2 battles took place between India and China. In first battle, perhaps Kanishk was not succeeded, but in the second battle he succeeded, and he occupied these regions according to the source of सियूकी। सियूकी से पता चलता है कि उसने आगे चल के इन क्षेत्रों पे अधिकार कर लिया था। तो यहाँ से हमको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ओके, now in eastern Indian parts we find inscriptions of Kanishk from many places that show the occupation of these areas of Kanishk, like Sarnath, Shravasti,
रेह ऑफ फैजाबाद, सांची, कौसाम्बी and so many other places from where we find the artifacts, residues and inscriptions of Kusan dynasty that show the possession of Kusan dynasty over these areas. तो ईस्टर्न क्षेत्रों पूर्वी भारत में इन एरिया से जो कुषाणों के हमारे पास अवशेष मिले, कुषाणों के जो हमारे पास अभिलेख मिले, इनसे हमको इसके इन क्षेत्रों के ऊपर अधिकार की पुष्टि होती है. एंड Kashmir, the occupation of Kashmir or Kashmir is denoted in the राष्ट्रंगरी of कल्हर की राष्ट्रंगरी पता चलता है कि कनिष्क has established a new city named कनिष्कपुर there. तो कनिष्कपुर स्थापित करने का श्रेय कनिष्क के द्वारा हमको इस क्षेत्र में प्राप्त होता है, जिसका सोर्स आपका राष्ट्रंगरी है. ठीक है. इसी तरह नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया जो आपका उत्तर पश्चिमी पार्ट है, यहाँ से हमको सुई बिहार इंस्क्रिप्शन जो सिंध के क्षेत्र में है, मनिककाल इंस्क्रिप्शन ऑफ पंजाब एंड जेद्दा इंस्क्रिप्शन ऑफ पेशावर, रहमान ढेरी, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ से हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि पश्चिमोत्तर भारत में कनिष्क का अधिकार था. तो पश्चिमोत्तर भारत से लेकर आपका उत्तर में कश्मीर के क्षेत्रों में, और उसके बाद हमको यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर की बात करें तो हम देखते हैं कि कनिष्क ने एक विस्तृत क्षेत्र पे अधिकार किया और एक बड़े साम्राज्य की स्थापना किया, जिसमें जो आपका विंध्य पर्वत श्रृंखला है, जो आपका दैट इज द नेचुरल डेमोक्रेशन लाइन, नेचुरल डिवाइडिंग लाइन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया. तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कश्मीर में कनिष्कपुर से लेकर बिहार में हमको यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं. साथ ही साथ आपका विंध्य पर्वत श्रृंखला तक इसके साम्राज्य हमको प्राप्त होते हैं. पश्चिमोत्तर भारत में जब का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट में हमको यहाँ से बहुत सारे अभिलेख प्राप्त हो रहे हैं जो इन क्षेत्रों पे इसके अधिकार की पुष्टि कर रहे हैं. इस प्रकार यहाँ पे आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तो इसमें आपका अफगानिस्तान का जो आपका नॉर्थ अफगानिस्तान है जो आपका बेसिकली बाखन पट्टी से इंडिया टच करता है. तो यहाँ से उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर हमको यहाँ बिहार तक इसके साक्ष्य मिलते हैं, और इधर यह आपका कश्मीर से लेकर विंध्य पर्वत तक हमारे पास विंध्य पर्वत श्रृंखला तक इसके साम्राज्य के विस्तार की पुष्टि होती है, जिसमें आगे चल के आपका कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान का कुछ क्षेत्र, तजाकिस्तान और मध्य एशियाई, बैक्ट्रियाई आदि क्षेत्रों पर भी इसका प्रभाव बना हुआ था. तो एक महत्वपूर्ण एक बड़ा क्षेत्र जो था दैट वाज ऑक्यूपाइड इन द एम्पायर ऑफ कनिष्क. तो कनिष्क ने एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना किया. ठीक है, आगे आते हैं. यद्यपि याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य किस शासक का है, तो आंसर होगा आपका अशोक. ठीक है, अशोक का साम्राज्य कुल मिला के 5 देशों में विकसित था. भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान. ठीक, आगे आते हैं. ही वॉज अ वेरी फेमस कल्चरल पर्सन आल्सो. ही वॉज पेट्रोन ऑफ बुद्धिज्म. उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया. एंड द 4th बुद्धिस्ट काउंसिलिंग was held in his reign. It was solemnized in the कुंडल वन ऑफ कश्मीर. कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध काउंसिल इस समय हुआ. in which Vasumitra was the president of this council. He was presiding person, and while Ashughosh was वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस काउंसिल. तो चौथी बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलवन में हुआ, जिसमें वसुमित्र अध्यक्ष और अशुघोष जो था उसका उपाध्यक्ष था. इसमें
एक प्रमुख ग्रंथ लिखा गया विश्व विभाषा शास्त्र, इसे कहते हैं आप विभाषा शास्त्र। विभाषा शास्त्र was a famous text that was composed by Vasumitra in the fourth council of Buddhism. This text is taken as the encyclopedia of Buddhism. यह बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहलाता है। याद रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। इसे कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म यह कहलाता है। जबकि एक क्वेश्चन यहाँ पे और याद रखिएगा, जबकि सुत्त पिटक दैट वाज कंपोज्ड इन द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, दिस इज नोन एज द अर्ली इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म। सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहता है। सुत्त पिटक इज रेफर्ड एज द अर्ली इंसाइक्लोपीडिया बुद्धिज्म। अर्ली इंसाइक्लोपीडिया बुद्धिज्म, ओके, या कर सकते हैं आप इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अर्ली बुद्धिज्म, यही कर दीजिएगा आप लोग। अर्ली इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अर्ली बुद्धिज्म, ओके। आगे देखते हैं। एंड इन दिस काउंसिल बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। फर्स्ट वाज हीनयान एंड सेकंड वाज महायान। ठीक है, तो ये आपके महत्वपूर्ण आते हैं। He also propagated Buddhism in China, Japan, Central Asia and Tibet। तो बेसिकली कुषाण काल में चीन में, जापान में, मध्य एशिया के और तिब्बत के क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। यद्यपि तिब्बत में बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने का श्रेय पाल वंश को दिया जाता है। ओके, इन द क्वेश्चन आते हैं कि Kanishk was the first Indian emperor who released the Bodo type of coins। Bodo type of coins related to महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का पहली बार कॉइन्स पे जो डिपिक्शन हुआ है, चित्रण हुआ है, वह पहली बार कंस के सिक्कों पे है। इसे कहते हैं बोडो टाइप ऑफ कॉइन्स। तो बुद्ध को पहली बार बुद्ध का जो मानवीय चित्रण हुआ है, याद रखिएगा, बुद्ध का पहली बार मानवीय चित्रण जो हुआ है वह कनिष्क के सिक्कों पे हुआ है, और बुद्ध को पहली बार सिक्कों पे भी कनिष्क ही दर्शाया गया है। ठीक है, बुद्ध को साको मानो, शाक्य मुनि बुद्ध कहा गया है। बुद्ध को क्या कहा गया है? साको मानो मतलब होता है शाक्य मुनि। बुद्ध को शाक्य मुनि बुद्ध कहा गया है, साको मानो। ठीक है, शाक्य मुनि बुद्ध कहा गया है। जबकि भागवत अवलेख को कहा गया है हिद बुद्धे जाते शाक्य मुनि च, और रूमेन दे इंस्क्रिप्शन में कहा गया है अशोक के हिद बुद्धे जाते शाक्य मुनि च। यहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था तो उनको शाक्य मुनि कहा गया है रूमेन दे अवलेख में अशोक की। लेकिन कनिष्क के अवलेखों में भी, कनिष्क के आपके मुद्राओं पे आज पे इनको शाक्य मुनि बुद्ध कहा गया है। ठीक है, तो ये शाक्य मुनि हैं, बुद्ध हैं। जबकि बुद्ध शाक्य अशोक को कहा गया है मास्क के इंस्क्रिप्शन में। अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है मास्क के इंस्क्रिप्शन में, और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है वेनसांग को। ठीक है, रूपनाथ इंस्क्रिप्शन में अशोक को केवल शाक्य कहा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, और शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध कहा गया है। बुद्धा इन डिस्गाइज्ड फॉर्म आर लैटेंट बुद्धा। ओके, आते हैं थोड़ा सा और देखते हैं। And one more thing, that Kanishk is also known as a very tolerant ruler who had given the shelter of all sects, all religions. Also, he also released the
the coins depicting the Lord Shiva, depicting the other lords of the world like the Greek lords, Iranian lords, and Chinese lords also. तो इसके सिक्कों पे हमको भारतीय देवता, पारसी ईरानी देवता, ग्रीक देवता और चाइनीज देवताओं के भी हमको डिपिक्शन मिलता है. द फोर फोल्डेड लॉर्ड शिवा was firstly depicted on the coins of कनिष्क. कनिष्क के सिक्कों पे पहली बार चतुर्धारी भगवान शिव का अंकन मिलता है. पहली बार चार भुजाओं वाले भगवान शिव का अंकन कहाँ मिलता है? कनिष्क के सिक्कों पे. जबकि याद रखिएगा कि चार भुजाओं वाले भगवान विष्णु का पहली बार जो डिपिक्शन हुआ है वह हुविस के सिक्कों पे हुआ है. हुआ द सक्सेसर ऑफ कनिष्क. कनिष्क के बाद के उत्तराधिकारियों में उसका क्रम आता है, आपका आता है वासुदेव के बाद. तो ओवरऑल तो यहाँ पे हो गया. तो फोर फोल्डेड लॉर्ड शिवा, फोर फोल्डेड लॉर्ड विष्णु, ये दोनों कुषाण राज्य से संबंधित हैं. कुषाणों ने भारत में सबसे ज़्यादा तांबे का कॉइन सिक्का जारी किया. पूरे भारतीय इतिहास में सर्वाधिक जो कॉपर कॉइन्स है कुषाणों ने जारी किया. और कुषाणों ने ही भारत में सबसे प्योरेस्ट गोल्डन कॉइन्स जारी किया है. सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने का सिक्का भी भारत में कुषाणों ने ही जारी किया है. लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या अगर पूछेगा क्वांटिटी ऑफ द कॉइन्स ऑफ गोल्ड, तब हो जाएगा आपका आंसर आपका गुप्त डायनेस्टी. ठीक है. तो कुषाणों का कई डिस्कोर्स महत्व है. कुषाणों के समय में बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं का भी चित्रण, सूर्य भगवान आदि का चित्रण हमको मिलता है. त्रिशूल का चित्रण मिलता है. डमरू के सिक्के हमको मिलते हैं. बहुत सारे चित्र इनके कॉइन्स पे हमको प्राप्त होते हैं. और खासकर कनिष्क के सिक्कों पे ये सब देखने को हमको और मिलता है. ठीक, आगे देखते हैं. कुषाणों का एक देव समूह है, देवकुल है, अ ग्रुप ऑफ डेटीज. वह हमको मिलता है आपका सुर्खपोतल से. सुर्खपोतल अफगानिस्तान से हमको मिलता है. सुर्खपोतल से हमको मिलता है. दूसरा हमको सारनाथ से हमको बुद्ध बोधिसत्व की मूर्तियाँ और कुषाण शासकों की मूर्तियाँ हमको प्राप्त होती हैं. मथुरा के माठ नामक स्थान से, पर्टिकुलर प्लेस ऑफ माठ सिचुएटेड इन मथुरा के माठ नामक स्थान से भी हमको कुषाण शासकों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं. ठीक है, कुषाण शासकों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं. और दूसरा हमको यहाँ से मथुरा के माठ से और मथुरा से बहुत सारे कॉइन्स मिले हैं. और बहुत सारे हमको यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस और बहुत सारे हमको मॉन्यूमेंट्स मिले हैं जो कुषाण काल से संबंधित हैं. मथुरा कला ऑफ आर्ट एंड गंधार कला ऑफ आर्ट वर आल्सो डेवलप्ड इन ड्यूरिंग द रेन ऑफ कुषाण. कुषाणों के समय में मथुरा कला और गंधार कला का भी विकास हुआ. इसी समय अमरावती कला का भी विकास हुआ. गंधार कला जिसे ग्रीक को बुद्धिस्ट भी कहते हैं, जिसमें यूनानी और भारतीय कला का सम्मिश्रण देखने को मिलता है. और मथुरा कला जिसके पर्टिकुलर 3 प्लेसेस हैं. एक आपका है कंकाली टीला, जहाँ से हमको जैन स्कल्पचर्स मिलते हैं. सेकेंड इज जमालपुर, फ्रॉम वेयर वी फाइंड द स्कल्पचर्स ऑफ बुद्धिज्म. एंड थर्ड वन इज कचहरी, फ्रॉम वेयर वी फाइंड द स्कल्पचर्स ऑफ हिंदू डेटीज. तो यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं के हमको यहाँ पे बहुत सारे चित्र और मॉन्यूमेंट्स हमको प्राप्त होते हैं. तो मथुरा की 3 प्लेस हैं, कंकाली टीला, जमालपुर, कटरा एंड कचहरी. ओके. तो गंधार स्कूल ऑफ थाट, मथुरा स्कूल ऑफ थाट का इसमें विकास हुआ. सारनाथ में बहुत सारी कलाकृतियाँ बनाई गई. और इसी समय में बहुत सारे चैत्य विहार और स्तूपों का निर्माण करा गया, जिसमें एक आपका फिरोजपुर पेशावर पाकिस्तान में 13 मंजिला लगभग 400 फीट ऊंचा यहाँ पे एक विहार का निर्माण कराया गया, जिसके बारे में जानकारी हमको अलबर्नी भी देता है, जिसे अलबर्नी ने कनिष्क चैत्य कहा है. अलबर्नी ने इसे कनिष्क चैत्य कहा है. और फाहियान और वेनसांग ने भी इसको देखा है. तो फाहियान, वेनसांग और अलबर्नी ने भी हमको फिरोजपुर पेशावर के 13 मंजिला जो कनिष्क चैत्य है, उसका जो कनिष्क टावर कहता है, कनिष्क टावर है, उसके बारे में उन्होंने जानकारी हमको दिया है. ठीक है. 13 मंजिला या 400 फीट ऊंचा आपका ये हमको प्राप्त होता है. ठीक है. आगे देखते हैं.
इसी समय बहुत सारे चैत्य और स्तूपों का निर्माण किया गया। तो बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स यहाँ प्राप्त होते हैं, बहुत सारे कल्चरल थिंग्स हमको यहाँ पे प्राप्त होते हैं। आगे आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा देखते हैं, कनिष्क ने अपने दरबार में बहुत सारे राइटर्स को, बहुत सारे आपके लिटरेरी पर्सन्स को भी पेट्रोनाइज किया, उनको उन्होंने आश्रय दिया, जिसमें सबसे प्रमुख है अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा है। अश्वघोष जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के आपके वाइस प्रेसिडेंट भी थे। अश्वघोष ने सौंदरानंद लिखा है। अश्वघोष ने सौंदरानंद लिखा। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा। तो अश्वघोष एक महत्वपूर्ण आपके इस समय के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। अश्वघोष को इंडियन मिल्टन भी कहा जाता है। अश्वघोष इज आल्सो नोन एज द इंडियन मिल्टन। ओके, तो अश्वघोष को इंडियन मिल्टन भी कहा जाता है। इन्होंने बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण लिखा है। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं इंडियन मिल्टन। अश्वघोष इज नोन एज इंडियन मिल्टन। Second is Matchet Nagarjun, who is known as the Martin Luther of India. The Martin Luther of India, किसको कहा था? अश्वघोष को, इसको कहा था नागार्जुन को। नागार्जुन who has given the theory of relativism, इन्हें सापेक्षतावाद का जनक माना जाता है। इन्हें सापेक्षतावाद का जनक माना जाता है। दूसरा देखिएगा, तो इन्हें कहा जाता है, इन्होंने थियरी ऑफ रिलेटिविज्म दिया। दूसरा, इन्हें शून्यवाद का प्रतिपादक, ही इज नोन एज द पायनियर ऑफ निहिलिज्म। तो ये शून्यवाद के प्रतिपादक भी माने जाते हैं। तो इनका माना जाता है थियरी ऑफ निहिलिज्म एंड इन्होंने माध्यमिकवाद या माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादन किया। तो इन्हीं से रिलेटेड है आपका थियरी ऑफ मिडिल वे। तो थियरी ऑफ मिडिल वे जो है माध्यमिक दर्शन, यह किसका है? यह भी आपका नागार्जुन का है, माध्यमिक दर्शन। जबकि थियरी ऑफ मिडल मीन मध्यम मार्ग का जो सिद्धांत है वो महात्मा बुद्ध का है। महात्मा बुद्ध हैज गिवन द थियरी ऑफ मिडल मीन विच इज कंपेयर्ड विथ द गोल्डन मीन ऑफ अरिस्टोटल, जो अरिस्टो के गोल्डन मीन के से जिसकी तुलना की जाती है। तो बुद्ध का पूछेगा तो हो जाएगा थियरी ऑफ मिडल मीन, मध्य मार्ग। बुद्ध कहते हैं ना, अतिशय त्याग, अतिशय आसक्ति और अतिशय विरक्ति के बीच में मध्य मार्गी बनिए। थियरी ऑफ मिडल मीन बुद्ध का है, दैट इज कंपेयर्ड विथ द अरिस्टोटल्स थियरी ऑफ गोल्डन मीन ऑफ अरिस्टोटल। ठीक, थियरी ऑफ गोल्डन मीन। ओके, आगे और देखते हैं। इसके बाद आपका फेमस और हुए चरक हुए, जिन्होंने चरक संहिता दिया। ही इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन। इन्हें काय चिकित्सा का जन्मदाता कहते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन। ठीक, अगला देखते हैं। ओके, तो ये महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हुए जो इनके समय रहे हैं। एक लास्ट और देखते हैं, कनिष्क, ही वाज आल्सो डिप्लोमेटिक रूलर्स who established his relation with other countries of the world and exchanged his ambassadors to डिप्लोमेटिक रिलेशन में इसका चाइना से, रोम से, सेंट्रल एशिया से इसका संबंध रहा। इसने इस काल में भारत में व्यापार वाणिज्य का व्यापक विकास हुआ, ट्रेड एंड कॉमर्स का इसमें व्यापक विकास हुआ। और कुषाणों ने सिल्क रूट
कुषाणों ने सिल्क रूट पे अधिकार कर लिया, जो बैक्टीरिया के मुख्य क्षेत्र से गुजरता था, और पूरा सिल्क रूट जहाँ से रेशम का उत्पादन होता था, जहाँ से रेशम का व्यापार होता था, इस मार्ग से रेशम का व्यापार अत्यधिक होने के कारण ही इसे सिल्क रूट कहा जाता है, इसे सिल्क रूट कहा जाता है। अब थोड़ा सा आते सिल्क रूट देखते हैं। तो हुआ क्या कि जो यह सिल्क रूट था, यह बेसिकली चाइना के शेरी नामक स्थान से, शेरी स्थान से चलता था, और शेरी स्थान से चलकर ये यहाँ से मध्य एशिया के क्षेत्रों से होकर गुजरता था। और मध्य एशिया, जिसके पहली बार संकल्पना मध्य एशिया की संकल्पना हम्बोल्ट महोदय ने दिया है, जिसमें वर्तमान में तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान आदि शामिल होते हैं। यहाँ पे जब ये बैक्टीरिया पहुँचता है, ठीक है, तो बैक्टीरिया में क्या किया गया, क्या कुषाणों ने पूरा बैक्टीरियाई मार्ग पे अधिकार कर लिया था। यहाँ से चीनांशुक, चीनी रेशम, ठीक है, चीन पट्ट आदि का उत्पादन होता था, इसीलिए इसको सिल्क रूट या रेशम मार्ग कह दिया गया, रेशम मार्ग। यह बैक्टीरिया मध्य एशिया के क्षेत्र से होकर गुजरता था, और फिर यह क्या करता था, यह सेंट्रल एशिया से होकर यह आपका पहुंच जाता था भूमध्य सागर के पास, यूरोप में रोम तक, इटली रोम तक। तो यहाँ इससे रोम तक हमारे यहाँ व्यापार मुख्यतः होता था, आक्सस क्षेत्रों से होते हुए यह महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था। भारत वाले जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह से जो जाते थे उत्तर की ओर, जिसे कहते हैं आपका उत्तरापथ मार्ग, और यहाँ पे जो आपका गुजरात के भ्रुकच्छ से जो उत्तर की ओर मार्ग जाता था, इसे भी कहते थे उत्तरापथ मार्ग। ये दोनों मार्ग पहुँचते थे कहाँ पे, तक्षशिला में। तक्षशिला वाज द जंक्शन of the traders, and it is also known as the मक्का ऑफ द ट्रेड। इसे हम तक्षशिला जो इनका मुख्य जंक्शन होता था, इसे व्यापार का मक्का भी कहता है, व्यापारियों का मक्का या व्यापार का मक्का भी कहता है तक्षशिला में। तो तक्षशिला जो था इसका मुख्य जंक्शन था, जहाँ से व्यापार वाणिज्य होता था। बैक्टीरिया से जो लोग भारत की तरफ आते थे, लोग तक्षशिला मिलते थे। भारत से ताम्रलिप्ति बंदरगाह, जिसे पूर्वी गंग भी कहते हैं, भ्रुकच्छ, बेरगाजा या भरौज से इधर से जो उत्तर को जाते थे, ये लोग भी तक्षशिला मिलकर यहाँ पे सामानों को एक्सचेंज कर लेते थे। और इसके बाद फिर यह बैक्टीरिया यहाँ से चाइना, यहाँ से आपका मध्य एशिया के क्षेत्रों से होते हुए यह पहुँच जाता था आपका पूरा रोम आदि के क्षेत्रों तक, पूरा पश्चिमी एशिया के क्षेत्रों तक इसका व्यापार वाणिज्य होता था, ठीक है। तो यहाँ तक पूरा यह महत्वपूर्ण जंक्शन होता था। इसी जंक्शन पे कुषाणों ने पूरी तरह से अधिकार कर लिया था, इसीलिए कुषाण काल में व्यापार वाणिज्य, अंतरराष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य का सर्वाधिक विकास होता है। वर्तमान जो सबसे डिस्प्यूटेड मैटर वर्तमान में चल रहा है वह यह है कि 1962 की युद्ध के बाद चाइना ने जो कुछ क्षेत्रों पे अधिकार कर लिया भारत के, जिसे कहते हैं आप अक्साई चीन, और जो 1965 का, ठीक है, 1947 आज का जो 1947 के बाद से जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसे आप कहते हैं पीओके, यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र आपका जो है यहाँ पे अधिकार कर लिया गया पाकिस्तान द्वारा। ये क्या कर दिया गया कि चाइना जब इस समय वन बेल्ट वन रोड पे काम कर रहा है, जो एक सड़क और एक बेल्ट की काम कर रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पे अक्साई चीन से अपना यहाँ से सड़क गुजार रहा है, और इसको ये जो आपकी गुलाम कश्मीर है, जो आपका पीओके है, यह हिस्सा पाकिस्तान ने लीज पे दे दिया है। इसीलिए क्या कभी इस क्षेत्र से गुजरेंगे तो भारत की सामरिक स्ट्रेटेजिक रूप से भारत के लिए नुकसानदायक होगा, और इन्हीं दोनों क्षेत्रों से यह वन बेल्ट वन नेशन जो इसकी योजना चल रही है वो यहाँ से जा रही है, इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। यही एक मुख्य डिस्प्यूट है भारत और चाइना के बीच में, ठीक है, जिसमें कुछ क्षेत्र अक्साई चीन के, कुछ चीन गुलाम कश्मीर से के सटे होकर यहाँ से जो सड़क निकाल रहा है चाइना, जो भारत के लिए भविष्य में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसीलिए भारत इसका विरोध कर रहा है, जो जबरदस्ती चाइना द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो यह एक आपका रिसेंट पर्सपेक्टिव है इस संदर्भ में। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कुषाण डायनेस्टी ने व्यापार, संस्कृति, सभ्यता आदि के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसीलिए कुषाणों का भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान है। कुषाणों में कनिष्क जो हैं ये पहले भारतीय शासक माने जाते हैं जिन्होंने स्वर्ण सिक्के जारी किए। यद्यपि कुषाणों में पहला शासक पूछेगा तो बिल्कुल कटपिशेस आंसर होगा, लेकिन पहला भारतीय शासक पूछेगा तो आपका आंसर होगा कनिष्क फर्स्ट, ठीक है। तो कुल मिला के एक बड़े साम्राज्य, विस्तृत साम्राज्य की कनिष्क ने स्थापना किया। कनिष्क ने व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित किया। कनिष्क ने चैत्य विहार, स्तूप आदि को बनवाया। कनिष्क ने भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुरूप यहाँ का विकास किया, बुद्धिज़्म का विकास किया।
इसलिए कई दृष्टिकोणों से कनिष्क ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसीलिए कनिष्क की गणना भारत के महानतम शासकों में से की जाती है। तो भारत के एक महानतम शासकों में से एक माने जाते हैं और यही आपका कनिष्क की महत्वपूर्ण उपलब्धियां है। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।